हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं समथिंग वेरी पर्सनल टू मी एंड ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू मूव अब्रॉड। द बिग न्यूज़ विच आई वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इज़ कि मैं फॉर स्टडीज़ कनाडा मूव हो रही हूँ। गाइज, मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी लास्ट अक्टूबर में, लाइक अक्टूबर 2020 में। सो आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी विद यू गाइज सो दैट ये ब्लॉग आपके लिए यूजफुल हो। आप नहीं तो मे बी आपके नोन में कोई आपके फ्रेंड्स, इन केस अगर किसी को ज़रूरत हो तो। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोसेस एंड first of all you need to decide that whether you want to move Canada or not. So taking considerations of all the factors, आप यहाँ अपने जॉब में क्या कैसा कर रहे हो, आपको अपनी जॉब के लिए और कुछ ज़्यादा चाहिए, or you want to move abroad anywhere, so you can consider Canada as a country because at this point it is, I guess it is the most wanted countries जहाँ लोग immigrate होना चाहते हैं। After that you have to decide whether you want to go for PR or you want to go for study visa. So there are many factors which can decide that whether you should go for directly PR or you should go for study visa, like student visa. So here are all the options which you can see कि क्या क्या चाहिए, like your age. So in my knowledge, like best is till 36. After that your point decreases in PR. Then your qualifications, which field you want to pursue, and what is your work experience. So while applying for PR, work experience plays a very important role. अगर आपके पास sufficient work experience नहीं है, then I will prefer you go for student visa. So the third we want to know is कि definitely you need to have a passport. Because starting from the process like booking your IELTS exam or giving your IELTS till applying for the visa, you need a passport. I'll be mentioning the website in the description below, the Indian government website from where you can apply for your passport. After getting your passport, you have to prepare for IELTS. Because while applying for the college, you can go for different exams, which is the English proficiency exams. You can go for PTE, you can go for TOEFL, you can go for IELTS, or even some of the colleges accept Duolingo. But while applying for visa, it is necessary that you have IELTS. And IELTS का भी in fact criteria है, हर college का it's different. So I'll be explaining it that further. So while preparing for IELTS, it will at least take you 15 days to a month to prepare and give your IELTS exam so that you can score appropriate. You cannot aim for less than 7 band to get into a good college, and अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका वीज़ा किसी भी रीज़न से रिजेक्ट. And for IELTS in India, it's either British Council or IDP. So IDP is an Australian organization and British Council is of UK, Britain. And I have heard a news that British Council is now not like taking exams in India. So I would prefer to go for IDP, which is comparatively a bit easy. Once you have prepared for IELTS, you need to book the test. You have to go to the IDP website, register for the test, pay a fees, which is I guess 14,100 or 200 something. Like approximately it's 14,000. So you need to pay the fees, and after that you need to upload your passport photographs front and back, and then pick up the whichever available date you think कि आपको सबसे बेटर सूट करती है, कि आपको उस टाइम तक प्रॉपर प्रिपरेशन का टाइम भी एक्स्ट्रा मिल जाए एंड इतना डिले भी नहीं हो. बिकॉज आइल्स का एग्ज़ाम आने में एटलीस्ट 15 डेज लगते हैं. लाइक ऑन द 15th और द 13th डे यू गेट योर स्कोर्स. एंड अब ड्यू टू कोविड स्कोर कार्ड फिजिकली आपके घर नहीं आएगा. यू हैव टू डाउनलोड द स्कोर कार्ड फ्रॉम योर IDP रजिस्ट्रेशन.
सो फॉर पर्सनली मैंने IDP दिया था, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट IDP अलॉट, बिकॉज मुझे उसका एक्सपीरियंस है. In IELTS, it is reading, writing, speaking and listening, in which you need to get at least 7 band, no less than 6.5. So this is the minimum requirement of all the colleges. कुछ colleges में है कि आपको overall 7.5 band चाहिए, no less than 7. Once you book your test, you have to appear. उसके centers बनते हैं, you need to go to center. स्पीकिंग के लिए अलग होगा एंड रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग के लिए अलग से होगा. एंड देयर इज पेपर और पेन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसको बुक कर सकते हो. सो नॉर्मली बुक करने के 10 दिन बाद की डेट मिलती है. एंड व्हेन यू बुक द टेस्ट, आप जाकर अपना टेस्ट दीजिए. सो स्पीकिंग का होपफुली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग से 2 दिन पहले होगा. Give your test, wait for 15 days and get your score. Once you have your scorecard, आप अपने colleges के लिए अप्लाई कर सकते हो. Before applying to colleges, we need to know कि हम कनाडा के कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं. There are numerous provinces and again प्रोविंस चूज करने के लिए जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स है, you can just see on the screen. प्रोविंस में क्या डेवलपमेंट हुई है, उसके लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, बिकॉज कनाडा में हर प्रोविंस का अपना अपना अलग लिविंग एक्सपेंस है, आप एक एवरेज नहीं रख सकते हो. देन वहाँ पार्ट टाइम जॉब की क्या अवेलेबिलिटी है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स वीकली जॉब करने की परमिशन होगी. सो आपको ये भी देखना है कि आप अपने एक्सपेंसेस उस पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हो या आपके पास बैकअप में उतना फंड्स है. अब पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब में वेज रेट क्या है. जैसे ऑन्टारियो में इट्स 14, नोवा स्कॉशिया में इट्स 12 पॉइंट समथिंग. सो एवरी प्रोविंस हैज़ अ डिफरेंट मिनिमम वेज रेट. एंड अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर. लाइक आपको मिनिमम वो वेज रेट तो मिलेगा ही एंड यूजुअली उसी पे जॉब्स मिलती हैं. देन उसमें फ्यूचर जब आपकी 2 या 3 या 1 साल की जो भी आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद यू विल फाइंड अ रियल जॉब. तो उसके प्रॉस्पेक्ट्स उस प्रोविंस में क्या है, वहाँ PR के क्या रूल्स हैं, वहाँ रहने की और बहुत फैक्टर्स होते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप क्या प्रोविंस चूज करोगे. यू हैव द IELTS स्कोर कार्ड, देन यू नीड टू चूज व्हाट कोर्स यू वांट टू गो इन. आपकी अभी तक की क्या क्वालिफिकेशन थी, आप +2 के बाद जा रहे हो, मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, कॉमर्स था, आप आगे क्या करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, ओके. सो आगे मास्टर्स की स्पेसिफिक फील्ड में करनी है. एंड ऑनेस्टली इंडिया में जितनी मास्टर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में उससे बहुत ज़्यादा है. दे गिव hundreds ऑफ वैरायटी इन अ कॉलेज कि आप किस किस प्रोग्राम में काम कर सकते हो. देन आपने प्रोग्राम चूज़ किया, आपने प्रोविंस चूज़ किया. अब उस प्रोविंस में बहुत से कॉलेजेस हैं, आपको कॉलेज चूज़ करना है. एंड कोर्स का टाइम ड्यूरेशन क्या है. आप 1 साल के लिए कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है. आप 2 साल के कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो कौन सा कोर्स अच्छा है. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू थिंक अबाउट कि 1 साल के कोर्स पे यू विल गेट 1 year ऑफ वर्क परमिट, 2 साल के कोर्स पे यू विल गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट विच इज़ 1+1 एंड इट इज़ 2+3. सो आप कितने टाइम के लिए कनाडा मूव होना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्या उस प्रोग्राम में आपको कोऑप मिल रहा है विच इज़ इंटर्नशिप. सो डेफिनेटली कोऑप एक प्रोग्राम में होना आपको एक अपर एज देगा बिकॉज दैट कोर्स विल हैव अ मच मोर वैल्यू जिसमें कोऑप नहीं था. सो एंड कोऑप में यू गेट अ सेमेस्टर जिसमें आप काम कर सकते हो विच इज़ पेड इंटर्नशिप. उस प्रोग्राम के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है उस प्रोविंस में. लाइक अगर मेडिकल ले लेते हैं तो मेडिकल की कितनी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप कॉमर्स मैनेजमेंट में कर रहे हो, सो मैनेजमेंट में अगर आप मार्केटिंग फील्ड में कर रहे हो तो मार्केटिंग की क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं. किस कॉलेज में अच्छा वो प्रोग्राम है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज की फ़ीस क्या है. सो वाइल डिसाइडिंग द कॉलेज यू हैव टू चेक कि उस में प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम लेना चाहते हो वो प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं है, उस प्रोग्राम की टाइम ड्यूरेशन क्या है, देन उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, आगे आपको कॉलेज जॉब प्लेसमेंट देगा या नहीं देगा या आपको खुद से लेनी पड़ेंगी. कॉलेज में जाने के लिए
ईजीली ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है या नहीं है. ओके, सो लेट्स इमेजिन आपने अपना आइल्स एग्जाम दिया, आपने प्रोविंस चूज किया, देन यू हैव गॉट इनटू अ कॉलेज, लाइक देन आपने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इस स्पेसिफिक कॉलेज में जाना है. व्हाट आफ्टर दैट? ये सब डिसाइड करने के बाद यू हैव टू अप्लाई इनटू अ कॉलेज. कभी भी एक कॉलेज के सहारे मत रहना, एटलीस्ट अप्लाई इनटू 2 to 3 कॉलेजेस फॉर योर बैकअप. लाइक मान लीजिए आपने अपनी रिसर्च की है एंड आपको अपने पसंद के कॉलेज में आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, बट देन आफ्टर यू गेट टू नो अ फ्यू थिंग्स जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आफ्टर दैट व्हाट? बिकॉज LOA आने में एटलीस्ट 1 महीना लगता है, तो आप वो फिर से 1 महीना तो वेस्ट नहीं करेंगे. सो बेटर अप्लाई फॉर 2 to 3 बैकअप कॉलेजेस. देन यू गेट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉलेज. देन यू नीड टू डिसाइड विच कॉलेज टू फाइनलाइज. एक बार दोबारा से अपना क्राइटेरिया कॉलेज के क्राइटेरिया से मैच करिए, देन फाइनलाइज 1 कॉलेज एंड उस कॉलेज की फीस भरिए, बिकॉज यू हैव टू पे अ फुल ईयर फीस. A full year fees for a college is approximately 16 to 18,000 Canadian dollars. So जब आपका कॉलेज से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आप फीस पे कर देंगे, उसके बाद आपको कॉलेज से फ़ी रिसीट मिलेगी. सो या तो वो कॉलेज आपको खुद फ़ी रिसीट भेजेगा और यू हैव टू अप्लाई फॉर इट जैसे भी आपको, बिकॉज हर कॉलेज का डिफरेंट प्रोसीजर होता है. सो आपको वो कॉलेज फ़ी रिसीट संभाल के रखनी है, बिकॉज दैट इज़ टू शो कि आपने कॉलेज की पेमेंट कर दी है एंड यू हैव डिपॉजिटेड दिस मच ऑफ फंड्स. ओके, देन यू हैव पेड द फीस. फीस के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू ओपन अ GIC अकाउंट. अगेन बहुत ऑप्शंस हैं कनाडा में. इट कैन बी ICICI बैंक, इट कैन बी स्कोशिया बैंक, इट इज़ CIBC. सो अकॉर्डिंग टू वो आपको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपको क्या ठीक लगता है, वहाँ अगर आपके कोई नोन रहते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पता करवाइए, एंड देन ओपन अ GIC अकाउंट. 10,000 Canadian dollars आपको डिपॉजिट करना है. नाउ वाई 10,000 Canadian dollars? एंड प्लीज़ आपको ये पैसा वहाँ जाते ही एग्जैक्टली नहीं मिलेगा. यू विल गो देयर. आप वहाँ जब कनाडा पहुँच जाएंगे तो आप अपने बैंक में जाकर बोलेंगे कि मैंने GIC में पैसा डलवाया था, आपको रिसीट मिलती है, यू विल गेट अ GIC सर्टिफिकेट. आप वो जाकर उनको शो करेंगे एंड देन वो आपका GIC अकाउंट इनेबल करके आपका साथ में सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे. सो यू विल इनिशियली एट द सेम डे यू विल गेट 2,000 Canadian dollars. आफ्टर दैट जो रिमेनिंग आपका 8,000 Canadian dollars है वो आपको हर मंथ इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मंथ्स का बनता है. सो दैट कम्स टू लाइक $550 to $600 के बीच में आपको वो पैसा हर मंथ आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा. तो अब आपने GIC अकाउंट भी खुलवा लिया, आपको GIC सर्टिफिकेट मिलेगा विदिन 7 days. कुछ में इट टेक्स 3 to 4 days, बट नॉर्मली यूजुअली इट टेक्स 7 वर्किंग डेज. आपका वो GIC सर्टिफिकेट आ जाएगा विच यू नीड टू कीप. GIC सर्टिफिकेट हो गया, कॉलेज का सब काम हो गया. आफ्टर ओपनिंग द GIC अकाउंट एंड पेइंग 10,000 Canadian dollars, आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना है. While applying for visa, medical test is necessary. तो मेडिकल टेस्ट उन फैसिलिटीज़ में करवाइए जो अप्रूव्ड है. ईदर यू विल गेट दी लिस्ट ऑनलाइन, आप उसको गूगल कर सकते हैं कौन से स्टेट या कौन सी सिटी में कौन सी अप्रूव फैसिलिटीज़ हैं. सो आप मेडिकल टेस्ट कराने जाएंगे, उसका एक्सपेंसेस अराउंड लाइक 4,000 to 6,000 रुपीज़. एंड अगर आपने टैटू बनवाया है सो इट्स एक्स्ट्रा फॉर योर टैटू स्क्रीनिंग. सो आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद यू विल गेट अ मेडिकल ट्रैकिंग शीट. तो आपको अपने मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, दे डायरेक्टली गो टू IRCC. आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो आपको जो मेडिकल ट्रैकिंग शीट मिलेगी दैट इज़ वैलिड फॉर 1 year. लाइक 1 जुलाई 2020 को करवाया आपने अपना मेडिकल एंड आप 1 जुलाई 2021 तक कनाडा नहीं गए, आप इंडिया में हैं. सो आपको 1 जुलाई को दोबारा से मेडिकल करवाना पड़ेगा बिकॉज आपकी मेडिकल ट्रैकिंग शीट एक्सपायर हो जाएगी. आफ्टर गेटिंग ऑल ऑफ दिस डन, आपको अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा. अब उसकी फीस इज 150 Canadian dollars. The documents you need to apply for a student visa
are here down the screen and I will explain them to you. So first is photograph of your passport, front and back. फ्रंट इज जहाँ आपकी सब क्रेडेंशियल्स और आपकी फोटोग्राफ होगी. बैक इज जहाँ आपका एड्रेस होता है. सेकेंड इज यू नीड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर कॉलेज. जो आपको LOA मिला था, यू हैव टू अटैच इट इन योर फाइल. आफ्टर दैट यू नीड द फी रिसीप्ट. जो आपने फर्स्ट ईयर की फ़ी पेमेंट करी है उसकी आपको प्रूफ चाहिए. देन यू नीड अ GIC सर्टिफिकेट. जो आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट किए थे अपने GIC अकाउंट में, उसका आपको GIC सर्टिफिकेट चाहिए. देन यू नीड द मेडिकल ट्रैकिंग शीट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू शो sufficient funds for your 2-year tuition fee. and at least वो उतने sufficient funds आप दिखाइए कि आप अब 2 साल वहाँ रह सकते हैं. आपको पार्ट टाइम जॉब पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस कैन बी अ मेजर इशू फॉर द रिजेक्शन. सो वाई डू वी नीड टू शो फंड्स फॉर 2 years? आपने अपना फर्स्ट ईयर का फ़ी पेमेंट किया, सेकेंड ईयर इज स्टिल रिमेनिंग. आपने GIC अकाउंट दिया जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने तक मिलेगा. उसके आगे क्या? देन पार्ट टाइम जॉब इज़ अ फैसिलिटी जो आपको वहाँ की गवर्नमेंट से दी जा रही है, बट दे वांट कि आप उनकी पार्ट टाइम जॉब पे ही सिर्फ रिलाई ना करें अपनी फ़ीस पेमेंट के लिए. सो दे नीड टू सी कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप खुद को 2 साल के लिए सपोर्ट कर सकते हैं. अब उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स? आपका कोई LIC है, आपका कोई भी इंश्योरेंस है, उसको आप दिखा सकते हैं. आपने कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है, कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की है, आप उसकी रिसीट्स दिखा सकते हैं. आप अपने पेरेंट्स का GPF अकाउंट, अगर दे आर वर्किंग एंड उनका GPF अकाउंट की लास्ट 2 years की स्टेटमेंट. 1 साल से काम नहीं चलेगा, आपको उनकी 2 साल की GPF स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी. देन योर IELTS कोड कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला था कि आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कोई और तरीके से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्रूफ दे सकते हो, बट फॉर वीज़ा यू हैव टू शो योर IELTS रिजल्ट्स. देन यू नीड ऑल द अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th till your latest academic qualification. Then you need 3 to 4 passport size photographs. उसकी भी specific dimensions होती हैं which I will be mentioning in the description below. So don't worry guys, I will mention all of these details separately in the description down below for your reference again. But while filing for a visa, the most important document you need is your SOP, statement of purpose. So SOP being the most important document, आपको उसमें सब कुछ clearly mention करना है. Why you want to move to Canada, why study visa. Then you need to mention in that कि आप 2 साल बाद अपना कोर्स पूरा करके, या 3 साल में या 1 साल में आप अपना कोर्स पूरा करके इंडिया वापस आएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी देयर लाइबिलिटी. अगर आप उसमें मेंशन नहीं करते हैं कि आप इंडिया वापस आना चाहते हैं, सो दैट कैन बी अ मेजर इशू, बिकॉज most of the students, like majority of the students, get rejection with this reason only, that they have not justified the intent to come back to India. So उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फील्ड में या आप जो कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंडिया में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, या इंडिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हो सकती, एंड यू विल प्रेफर टू कम बैक टू इंडिया बैक. आपको उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन मुझे है, मैंने कुछ साल काम किया, but now I want to enhance my skills and my knowledge into finance also. So guys, all of these documents are very important, because अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा, so they will raise a question कि आपकी ये डॉक्यूमेंट नहीं है and you have to submit that. Again वो आपका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर देता है. एंड ड्यू टू कोविड इट इज़ हैपनिंग कि अब वीज़ा आने में बहुत टाइम लग रहा है. मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था 21 जनवरी 2021 एंड मेरा एग्जैक्टली 2 महीने बाद मेरा वीज़ा 26 मार्च 2021 को आया है. नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस एवरीथिंग इज़ रनिंग वेरी स्लो, सो इट टुक 2 months फॉर माई वीज़ा टू गेट अप्रूव. जब मैंने अप्लाई किया उस टाइम पे आपको पहले एक फर्स्ट अप्रूवल आ रहा था, देन यू वाज गेटिंग योर PPR विच इज़ पासपोर्ट रिक्वेस्ट. जब मेरा वीज़ा आया तो आई डायरेक्टली गॉट अ PPR, एंड PPR आने के बाद आपको नेक्स्ट काम इज आपको अपना वीज़ा स्टैम्प करवाना है पासपोर्ट पे.
सो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए आपको नाउ दी IRCC हैव कोलैबोरेटेड विद VFS ग्लोबल. आपका PPR जिस दिन आया है, आप सेम डे with all the necessary documents, which is the consent forms, the basic initial form, then your PPR, आपको एक वेब फॉर्म रेज करना है VFS ग्लोबल की साइट पे. आपका PPR आ गया है. नाउ यू वांट टू गो अहेड विद योर वीज़ा स्टैम्पिंग. So after getting it all done, your biometrics, your medical is updated, then you will get the PPR. So after 10 to 15 days आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है घर पे with the stamp. So guys, this was the whole process to apply for a student visa for Canada. So I hope this video was informative enough for you. And if you guys have any doubts more, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं. एंड दिस इज़ माई Instagram handle. You can ping me anytime and I'll also mention it in the description below. So thank you so much for watching, guys. And please do subscribe and share it with your loved ones. So in case मैं किसी और को help कर पाई, so it will be a great thing for me. So thank you so much, guys. Bye.